discussing on we are discussing on Samasar composed by Acharya Kunti. So last time we discussed on Gatha number 28, 29, and now we are going to discuss on Gatha number 30. So the subject matter what we have to discuss over here today is that a disciple is saying that I will consider as a body prayer of Lord as a prayer of Bhagwan or prayer of soul. So Acharya Kunkund is saying here, you are absolutely right from the point of view of Byoharne. So here the writer is just clearly mentioning his viewpoint that if you are praying body of any, if you're praying any god through body, so that is not false. That cannot be called false. That is true. But you will have to apply there Anay. The name of that Nay is Byoharne. So here Acharya is clarifying about the Nischay Stuti and Vyavhar Stuti. In Vyavhar Stuti, he's saying it is true. अब आगे निश्चय स्तुति की भी चर्चा यहाँ करेंगे कि किस तरह से निश्चय स्तुति है. Last time we just took an example of gold and silver. So the example was like that when we just mixed gold and silver. So usually it is called that it is white gold. So white gold, there is no substance like white gold in this universe, but the mix of uh, uh, yellow gold and white silver is called white gold. Like when soul and body of any Tirthankar, of any Bhagwan, we can just visualize him. So we can say that he is God. Because it is from Vyavhar point of view. Na? If we say that body and soul both are separated, so this is the viewpoint of Nischay. Na? But here we are talking about, we are praying of God from Vyavhar point of view. So here, what we are discussing, it is very clear that if you're praying to God through body, that is not false. That cannot be called false. That is true. Now, there is a one example of king and his just nagar or city. I just want to remember you about the ancient time when there was a kingship. So king was the autonomous lord of that land, of the specific land of the state. So at the time of independence in India, there were 547, uh, 547 small and big king in India before after independence. Then Indian government just merged in a centralized system to all of them. सो दिस ये एग्जाम्पल कोई बहुत पुराना नहीं है. अभी 1947 तक राजाओं का राज्य हुआ करता था. इवन आप जयपुर में देखेंगे, अभी नेट पर डालेंगे तो जयपुर में तो अभी भी राजवंश है और उनका सम्मान होता है. ये अलग बात है कि अभी उनकी चलती नहीं है, लेकिन वो बराबर वैसी मैजेस्टी मेंटेन करते हैं. देयर आर मेनी पीपल दे जस्ट कंसीडर देम एज अ लॉर्ड. तो ये जो राजा का एग्जाम्पल है, ये कोई बहुत पुराना एग्जाम्पल नहीं है, इमेजिनरी एग्जाम्पल नहीं है. पिछले 100 साल से अभी जो व्यवस्था हम देख रहे हैं डेमोक्रेसी की, सो ये पिछले 100 साल 150 साल की देन है. इससे पहले तो राजाओं का राज चला करता था. आप यूके में देखेंगे तो अभी तो यूके की तो होल सोल जो ऑनर है वो वहां की क्वीन रहती है. वो तो आज भी वही है, विक्टोरिया जिसको बोलते हैं लोग. तो उस चीज को हम डिस्कस करने के लिए गाथा नंबर 30 में यहाँ से पढ़ रहा हूँ, फिर आप लोग पढ़ेंगे यहाँ और फिर हम आगे इस गाथा को लेंगे. प्रणय रम्मी वर्णि दे जह प्रणवीरण्यो वर्णिना कदा होदी देह गुणे थुबंते प्रण केवली गुणा थुदा होंती. मैं फिर से पढ़ रहा हूँ. प्रणय रम्मी वर्णि दे जहण विरण्यो वर्णिना कदा होदी देह गुणे थुबंते प्रण केवली गुणा थुदा होंती. अब एक साथ पढ़ेंगे, फिर मैं एक एक से पढ़ाऊंगा. यहाँ पढ़िए एक साथ सब लोग, आप लोग.
गाथा नंबर 30। Rairamni vanite Jahanam Viranno Varnanam Kada HodiEh Gune Tu Vantenam Kevali Guna Tuda Honti। अब एक एक करके पढ़वा लेता हूँ मैं। ओके, प्रेरित जी पढ़िए इसको। प्रणय रम्य। सौरभ जी मैं जरा ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। वो चलेगा चलेगा। प्रतीश जी आप पढ़ पाएंगे? जी सौरभ जी। हाँ पढ़िए प्लीज। नयरम्मी वन्निदे जहण वीरण्णो मन्नणा कदा होदी देह गुणे थुव्वन्तेन केवली गुणा तुदा होन्ति। गुड। हाँ तो देखिए, रणय रम्मी वर्णिदे जहणवि रण्णो वर्णना कदा होदी देह गुणे थुब बनते ण केवली गुणा तुदा होती। इसमें पहली गाथा का वर्णन है रणय रम्मी। रणय रम्मी मतलब नगर वर्णन। नगरे वर्णिते यथा नापि राज्ञो वर्णना कृता भवति देह गुणे स्तूयमाने न केवली गुणा स्तुता भवन्ति। संस्कृत में है इसका ये। हिंदी में है, वर्णन नहीं है नगर पति का नगर वर्णन जिस तरह केवली वंदन नहीं है देह वंदन उस तरह। जैसे अभी हम लोग अपना नया घर बनाते हैं, ठीक है ना? तो इंडिया में तो ऐसी आदत है सबकी, मैं भी यहीं आता हूँ तो मैं भी ऐसे ही करूंगा। कभी किसी ने नया घर बनाया तो यहाँ बड़े महंगे महंगे घर बनने लगे हैं, बनते ही थे और बनने लगे हैं महंगे महंगे घर। 5 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़। तो अभी किसी ने मेरे मिलने वाले उनने बनाया 8 करोड़। दिखाते हैं वो घर, सौरभ जी हमने देखो ये घर बनाया है। फिर वो पूरा घर बताते हैं। तो मैं कहता अरे वाह बहुत अच्छा है। अच्छा होता है, अच्छे बोलना चाहिए। ये घर की बात होगी, लेकिन पहले जो ना राजाओं के नगर का वर्णन होता था, बिकॉज राजा वॉज द होल सोल ऑनर ऑफ दैट किंगडम। तो किसी भी राज्य की समृद्धि, व्हेन वी जस्ट लुक ऑन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी किंगडम, सो by which means we can assume the prosperity of their. So there was only one way. One way, it means if the city or that kingdom is fortified or that is beautified, uh, that was considered as a rich kingdom. तो राजा लोग कोशिश करते थे कि हमारे यहाँ ऊंची ऊंची भवन हो, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हो। और पहले क्या करते थे राजा की, अपने महल के बाहर ना मोट बनाते थे। तो आप लोग मोट जानते होंगे मेरे ख्याल से। आप जानते हैं मोट क्या होता है? इंग्लिश वर्ड है, इट इज एन इंग्लिश वर्ड, MOAT, मोट। कुंदन जी मोट जानते हैं, मोट? नहीं सौरभ जी। भूल गया अभी। मोट आप जानते हैं तेज जी? जी भूल गया। जान पढ़ा था काफी टाइम पहले। हाँ हाँ, मैं बता देता हूँ मोट क्या होता है। कि पहले के राजा के जो किला ना, राजा अपने किले को ना सुरक्षित करता था। तो हाँ। वो क्या करता था कि आसपास गहरी खाई खुदवाता था, है ना? और उसमें पानी भरवा देता था। तो जैसे कोई शत्रु ने आक्रमण किया तो वो क्या करेगा, पहले लैंड पे आएगा। लैंड से राजा के महल तक सीधा तो पहुंच ही नहीं पाएगा वो। तो राजा ने मोट खुदवा रखा था, मोट बनवा रखा था। तो वो गहरी गहरी खाई है, मतलब वो इसमें तो ऐसा लिखा है कि पाताल तक गहरी खाई है, इतनी गहरी खाई है वो। और उसको बहुत लंबी, मतलब लंबी बनाता था वो, ऐसा छोटी मोटी नहीं कि कोई ऐसे जंप करके उसको क्रॉस कर ले। तो वो मोट कहलाती थी वो। तो वो क्यों बनाता था? राजा अपनी सुरक्षा की दृष्टि से बनाता था कि भाई अगर प्रजा तक पहुंच भी गया कोई तो ठीक है, मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। तो मोट दो प्रकार की बनाते थे वो, कि एक तो अपने महल के बाहर भी बनवा सकते हैं वो, और वो पूरे अपने अपने नगर को ही, अपने किंगडम को ही मोट कर लिया उन्होंने पूरा।
तो अलग अलग कैटेगरी की मोट बनाते थे, पानी से, फिर बाहर में उन्हें फोर्टिफाइड करते थे। अभी मैं कहाँ का पढ़ रहा था कि वो दीवार जो है अपने राजस्थान में कहीं का देखा था मैंने, वो चाइना की वॉल से भी बड़ी दीवार है, क्योंकि उतनी फेमस नहीं किया गया उसको, तो वो फोर्टिफाइड है, मतलब उसको पूरा वो मोट बना दिया गया कि भाई कोई वहां तक पहुंच ही ना पाए। तो सपोज दैट कि व्हाट आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट द symbol of prosperity or the greatness of any kingdom was considered through their external beauty, through their attalikae, mahal, palaces, and how beautiful the city was, and how just accurately they just created moat, etc. These kind of technical things. So it was considered, and someone just reached to any king, and he told, "Oh, king, your city, your kingdom is beautiful, and I'm very much of impressed." तो ऐसा करके वहां पहले चलता था। तो यहाँ आचार्य ये कह रहे हैं कि प्रणयरम्मी वर्णिरे जहणा विरण्णो वर्णना कदा होदी, वर्णन नहीं है नगरपति का नगर वर्णन जिस तरह से। भाई नगर भले ही बहुत सुंदर है, इट्स अ फोर्टिफाइड, इट्स अ गुड, इट्स ब्यूटीफुल, वेल अरेंज्ड किंगडम और सिटी। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि भाई नगर का वर्णन करने से कोई नगरपति का वर्णन नहीं हो जाता, क्योंकि नगर अलग है और नगरपति अलग, दोनों अलग अलग है। नगर का वर्णन करने से नगरपति का वर्णन नहीं हो जाता। यहाँ ये गाथा क्यों आई वो मैं आपको रिलेशन रिलेशन जोड़ देता हूँ कि ऐसा एक प्रश्न यहाँ संभव था कि यदि शरीर में जब भगवान आत्मा विराजता है, भगवान का आत्मा रहता है उनके शरीर में, और शरीर ही उसका अधिष्ठाता है, अधिष्ठाता इट मीन्स ऑनर है, जिसने जगह दी आत्मा को रहने के लिए। तो आपने कहा कि मैं व्यवहार से उसकी स्तुति करूं, वो सही है, मैंने मान लिया। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं कि शरीर ही उसका अधिष्ठाता है, बॉडी इज द ऑनर ऑफ दैट soul, like king is the owner of that city or kingdom. So if I'm just narrating the beautiful facts of that city, so is it not possible you must consider the beautification narration of that king as well? तो क्वेश्चन ये है कि भाई वो ऐसा संभव है क्या? आप व्यवहार से ना कह के इसको निश्चय से ही कहो कि साहब ये निश्चय नए से ही स्तवन है। आप व्यवहार बोल के क्यों उसको थोड़ा सा हल्का कर रहे हैं उस सेंटेंस को? तो फिर आचार्य को ये कहना पड़ा कि भाई व्यवहार ने से तो एकदम सही कहा मैंने, पर व्यवहार ने कैसा वर्णन करता है कि व्यवहार ने जो है वो वर्णन करता है आपके मिली हुई अलग अलग चीजों को मिला के कथन करता है। ठीक है, अब यहाँ ये कह रहे हैं कि साहब अगर क्वेश्चन ऐसा है कि निश्चय से, तो फिर आचार्य को 30 नंबर की गाथा लानी पड़ी। भाई अगर किसी नगर का वर्णन किया है किसी ने, तो वो नगरपति का वर्णन नहीं हो जाता। नगरपति अलग है, नगर अलग है, वो था अलग। अब वो ऐसा कह रहे हैं कि भाई ऐसा हो सकता है कि कभी किसी राजा को कहीं कोई इनविटेशन दिया हो, तो ऐसा हो सकता है कि महाराजाधिराज प्रमोत्तम राय इज कमिंग, who is the owner of that beautiful kingdom in all over the globe, and the palaces and the haveli and the houses what they build, they just golden coated, and the gates are made by silver। ये हो सकता है। तो वो राजा अपने आप को, अपने नगर का वर्णन सुन के वो ऐसा माने, ओ माई माई सिटी, माई किंगडम एंड मी बोथ आर वन। वो व्यवहार में से है। निश्चय से अपन देखें तो राजा अलग है, वो अलग है। तो फिर आगे कह रहे हैं दूसरे नंबर की गाथा की लाइन, देह गुणे थुब्बंते न केवली गुणा थुदा होंती। जिस तरह से अगर राजा का वर्णन किया जाए, नगर का वर्णन किया जाए, तो वो राजा का वर्णन नहीं हो जाता। उसी प्रकार से अगर मैं देह का वंदन करता हूं तो केवली का वंदन नहीं हो जाएगा। रिमेम्बर वन थिंग, इसके पहले की जो बात चली है उसमें आचार्य कुंद कुंद ने इस बात का समर्थन किया है कि भाई देह का वंदन जो है हम केवली का ही वंदन मानेंगे, लेकिन व्यवहार न ऐसे मानेंगे।
अब यहाँ अगर किसी को ऐसा डाउट हो कि आप व्यवहार से नहीं, आप तो निश्चय से वैसा मानिए कि ये भगवान का ही वर्णन है, तो फिर यहाँ आचार्य को क्लैरिफाई करने की आवश्यकता पड़ी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नगर अलग है, नगर पति अलग, किंग अलग, किंगडम अलग। इसी तरह से देह अलग है और केवली अलग है। देह का बंधन हम, केवली का बंधन हम नहीं माने। ये इतनी सी बात बस यहाँ कही है इस गाथा में, इसका इतना ही सा मीनिंग है। फिर आचार्य अमृतचंद ने इस पे 2 कलश लिखे हैं, एक 25 नंबर का, एक 26 नंबर का। तो उन्होंने, आचार्य अमृतचंद ने इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। मतलब आचार्य कुनकुन एक गाथा लिख के रह गए और उन्होंने थोड़ा सा बता दिया, लेकिन आचार्य अमृतचंद ने टीका लिखी ना, समझ लो, तो उनने आचार्य कुनकुन की बात को इलेबोरेट किया है। तो उनने इसमें थोड़ा सा उस नगर का वर्णन कर दिया कि कैसा है वो नगर। मैं देखिए संस्कृत में पढ़ता हूँ, आप लोग उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्राकृत गाथा ही मेनली पढ़ते हैं। फिर हम हिंदी में इसका मीनिंग बताऊंगा। कलश नंबर है 25, 26। प्राकार कविलितांबर मुपवन राजी निगीर्ण भूमि तलम पिबतीव ही नगर मिदम परिखावलयीन पातालम नित्यम विकास सुस्थिर सर्वांगम पूर्व सहज लावण्यम अक्षोभ मिव समुद्रम जिनेन्द्र रूपम परम जायति। ये दो दो कलश हैं। इसका मैं मीनिंग बता देता हूँ हिंदी में, जो इसका अनुवाद मेरे पास में है। प्राकार से कवलित किया जिस नगर ने आकाश को, अर गोल गहरी खाई से ही पी लिया पाताल को। सब भूमि तल को ग्रस लिया उपवनों के सौंदर्य से, अद्भुत अनुपम अलग ही है वह नगर संसार से। तो यहाँ आचार्य अमृतचंद ने उस नगर का वर्णन किया है, कितना अच्छा नगर है। कैसा नगर है, तो क्या कहा, जिस नगर में ऊंचे कोट हों। ऊंचे कोट बनाने की आपको आवश्यकता क्यों पड़ती है? आप लोग कभी जयपुर गए हो तो आपने एक चीज नोटिस की होगी। पूरा जयपुर ना, जैसे आप जाएंगे तो वहां गेट है, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट। तो जयपुर में ऐसे बहुत सारे गेट्स हैं। अब सो व्हेन आई वाज देयर, सो आई इंक्वायर्ड अबाउट द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दोज गेट्स। तो मुझे बताया गया कि भाई पहले जो जयपुर था ना, पूरा इस परकोटे के अंदर था। जो गेट्स है ना, तो केवल गेट नहीं है, वो बड़े बड़े गेट हैं, दीवारें हैं वहां बड़ी बड़ी। तो बताया गया कि जब सवाई मानसिंह वाज द किंग ऑफ दिस किंगडम, और जब उनका राज्य था, तो बड़े बड़े गेट, परकोटे बनाए गए थे, और फिर उसके बाद बड़े बड़े गेट बनाए गए थे। पूरा जयपुर जो था ना, उन उस परकोटे के अंदर ही रहता था। अब आप कहीं किसी कोई काम हो तो जाता था ना, बाहर जाता था, गेट पास ले जाता था, या आके अपने जो भी उस समय आइडेंटिटी चलती थी वैसा कुछ बताता था, परमिशन कार्ड, वो फिर अंदर आ जाता था। ऐसा भी आप लोग हिस्टोरिकल फैक्ट ऐसे भी देखेंगे कि उन्होंने टाइम बना रखा था कि बिफोर 12 o'clock यू कैन कम इनसाइड दिस दिस गेट, अदरवाइज यू विल हैव टू स्टे आउट ऑफ दिस। तो रात को वो ये निगरानी भी होती थी पूरे गेट से, पूरे नगर के बाहर की निगरानी होती थी। इफ सम एनिमी विथ सोल्जर इज इट नॉट कमिंग और नॉट। तो अगर आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखते थे, आ रहा होता था अलर्ट होते थे, नहीं आ रहा है तो चौकन्ने रहते थे। तो वो जयपुर में आप कभी जाना हो तो देखिए, वहां इस प्रकार से कोर्ट बने हुए हैं। आज भी वो गेट बने हुए हैं, पूरे गेट बने हुए हैं। तो आपको फील होगा आज भी कि मैं जयपुर शहर में जा रहा हूँ। और जो पिंक सिटी जयपुर कही जाती है ना, तो उधर एक रूल है जयपुर में कि जो मकान होंगे ना वो पिंक कलर से होंगे। तो पूरे जयपुर में रूल नहीं है, जो गेट के अंदर है ना उसे कहा जाता है वो शहर का एरिया। तो वहां गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको ये पर्टिकुलर ये कलर से ही आपको मकान पोतने पड़ेंगे। दैट्स व्हाई दैट सिटी इज कॉल्ड पिंक सिटी। So inside the wall or inside the gate, that is called pink city, and outside the gate you can just use any kind of color. तो मैंने तो ये बताया कि उस समय जो जयपुर था वो परकोटे के अंदर था। एंड आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट दिस फैक्ट दैट जयपुर जो है इंडिया की सबसे सुंदर सिटी में नाम उसका आता है। एज आर्किटेक्चर बोल रहा हूँ मैं,
सफाई में नहीं आता है। आर्किटेक्चर में जयपुर को सबसे सुंदर शहर बोलते हैं, और है भी। आप जाएंगे तो हेरिटेज जो वहाँ चीजें हैं बहुत हैं, और जो वहाँ का आर्किटेक्चर है, ये सब चीजें रिमार्केबल हैं। बड़ा अच्छा लगता है वहां जाए। तो ऐसे ही जो एक नगर है उसका वर्णन यहाँ बता रहे हैं कि साहब, प्राकार से कवलित किया जिस नगर नए आकाश को। मतलब ऐसा लगता है उनके महलों को देखकर कि जैसे वो आसमान तक पहुंच गए। अभी जैसे हम लोग देखते हैं ना मेट्रोज में, जैसे बॉम्बे में, बॉम्बे तो इंडिया में एक अलग टाइप की सिटी है, तो वहां आपने देखा होगा कि कुछ अनयूजुअल बड़ी इमारतें हैं वहाँ। अब जगह है नहीं वहां तो क्या करें भाई, फिर वहां ऊंची ऊंची इमारतें बनानी पड़ती हैं, तो वो कुछ अनयूजुअल है, मतलब कुछ ज्यादा ही बड़ी है। तो वो सही में ऐसा लगता है कभी कभी आसमान तक पहुंच गए वहां पर। फिर वो एक आपने बुर्ज दुबई, एक इमारत है, वो कितनी ऊंची है, 136 मंजिल है कितनी है। तो वो इतनी ऊंची है कि वो वहां खड़े हो जाओ तो, सबसे ऊपर पहुंच जाओ तो वहाँ ऑक्सीजन भी थोड़ी सी कम होने लगती है। तो ऐसे ही कोई, मतलब उस समय ऐसे इतनी ऊंची इमारतें नहीं होती थी, लोगों की हवेलियां होती थी, मकान होते थे जिसमें एक फैमिली रहती थी। मतलब उन मल्टी में तो सैकड़ों फैमिलीज रहती हैं। तो कहा कि साहब कैसा है वो, अरे इतनी ऊंची उनके महल, मकान, हवेली इतनी ऊंची है, ऐसा लगता है जैसे आकाश कोई छू लेंगी। अच्छा। और गोल गहरी खाई से पी लिया पाताल को। अब गोल गहरी खाई वो बताया मैंने आपको कि वो उसको कवर करने के लिए या तो महल के बाहर या नगर के बाहर ऐसी गोल गहरी खाई बनाई जाती थी, जिसके कारण से उसमें पानी डाला जाता था, जिसके कारण से शत्रु ना पहुंचे। तो वो इतनी गहरी है कि ऐसा लगता है जैसे पाताल कोई पी लिया हो, वहां तक पहुंच गए हैं। अच्छा, और कैसा कि कहीं जैसे हम कोई नगर में जाते हैं तो नगर में हम देखते हैं कि वहाँ के बाग बगीचे कैसे हैं, है ना। जैसे इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत ऐसे देखें तो अभी अभी की बात बता रहा हूँ, अभी सौंदर्य की दृष्टि से इतना सुंदर नहीं है। मतलब यहाँ अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है धीरे धीरे, तो उतना बाग बगीचे भी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, रोड भी अभी तैयार हो ही नहीं है। लेकिन अगर वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, यूरोप की, आपके यहाँ की, यूके की, तो ये लोग बहुत डेवलप्ड है। और इनने अपनी रोड्स, इनने अपने बगीचे बाग बहुत अच्छे बनाए हैं। तो सब तारीफ भी करते हैं उस चीज की कि भाई जो यूरोप में, यूएस में या यूके में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया वो सुपर है। वहाँ के बाग बगीचे देखो आप, एकदम मेंटेन्ड हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। तो ऐसे ही कोई नगर का वर्णन आचार्य ने किया है कि वो इतनी ऊंची इमारतें हैं, इतनी गहरी खाई है, और सब भूमि तल को ग्रस लिया उपवनों के सौंदर्य ने। मतलब क्या हुआ कि वो जो खाली भूमि बची थी ना रोड्स के अलावा, इसके अलावा वो पूरी उपवन बना दिए वहां। उपवन मतलब विभिन्न प्रकार के फल हैं, फूल हैं, बेल हैं। तो अब सोचो कितना सुंदर नगर होगा। फिर आगे कह रहे हैं, अद्भुत अनुपम अलग ही है वह नगर संसार से। इतना ब्यूटीफुल है वो सिटी इतनी ब्यूटीफुल है कि ऐसा लगता है कि संसार में और कोई दूसरा स्थान रहने लायक है ही नहीं, यही स्थान केवल रहने लायक। तो आपको फिर जो भी सिटी लगानी हो, आप लोग जहां भी होके आए हो, जैसे मोस्ट लिवेबल सिटी का जो अवार्ड मिलता है हर साल, वो मेलबर्न को मिलता है। इस साल नहीं मिला, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न को मिलता है मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड। और वो है भी बढ़िया है, बहुत अच्छी है। बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा ही शहर है, लेकिन एकदम व्यवस्थित है, सुंदर है, बढ़िया है। और भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं भारत में, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी हो जिसकी पूरे वर्ल्ड वाइड कोई रिकॉग्निशन हो। लेकिन यहाँ उस समय जब राज्य चला करते थे, वो व्यवस्था बता रहे हैं कि वो कैसा है नगर। वो नगर अद्भुत है, अनुपम है, संसार से एकदम अलग है। ये उदाहरण दिया है आचार्य अमृतचंद ने, आचार्य कुंद कुंद की जो गाथा है उसको एलेबोरेट किया है। कि अगर आपको समझ में नहीं आया हो कि भाई कैसे राज्य हुआ करते थे, कैसे महल हुआ करते थे, तो वो है। और ज्यादा आपको डिटेल में जानना हो तो आपको इंटरनेट पे कई सारे पिक्चर्स मिलेंगे कि राजाओं के महल का चित्रण दिया है, नदी का दिया है आपको। एक मूवी आई थी 2016-17 में, बाहुबली करके आई थी। तो वो मूवी आप देखेंगे तो उसमें बताया है कि कैसे महल
रहते हैं। और वो, हाँ, उसमें मोट भी बताया है। उसमें बताया है कि जब वो बाहुबली महल में जाता है तो पहले पानी में कूदता है, फिर वहां से होके वो ऊपर जाता है। तो वो उसकी बड़ी तारीफ हुई, लोगों को बहुत अच्छा लगा कि साहब क्या क्या फैंटेसी क्रिएट, जो सिटी क्रिएट की थी। तो ऐसे ही ये कोई फैंटेसी नहीं हो सकता है, आचार्य अमरचंद ने ऐसी कोई शहर देखा हो, देखते रहे हो वो, तो उन्होंने कह दिया कि साहब इस प्रकार से ये वर्णन है, अद्भुत है, अनुपम है। फिर इसके आगे अब जिंदेव का वर्णन करते हुए 26 नंबर की गाथा में, मतलब ये पहली लाइन के लिए आचार्य अमृतचंद ने 25 नंबर का कलश लिखा। जो हमारी गाथा नंबर 30 है ना, उसकी पहली लाइन के लिए आचार्य अमृतचंद ने 25 नंबर का कलश लिखा, और दूसरी लाइन के लिए उन्होंने 26 नंबर का कलश लिखा। तो वो दूसरी लाइन में ये कह रहे हैं कि गंभीर सागर के समान महान मानस मंग है, नित्य निर्मल निर्विकारी सुव्यवस्थित अंग है, सहज ही अद्भुत अनुपम अपूर्व लावण्य है, शोभ विरहित अर अचल जयवंत जिनवर अंग है। जो हमारे भगवान की जो प्रतिमा होती है, तो प्रतिमा के संबंध में आप लोगों ने सुना होगा कि समचतुर संस्थान होती है। सैकड़ों सालों से प्रतिमाओं का बनाने का जो एक हेड डिपार्टमेंट है, या समझिए सेंटर है, वो जयपुर है। मतलब अभी मैंने नगर का वर्णन बताया, अब जयपुर का फिर से आ रहा है, मूर्ति के उसमें आ रहा है। तो साहब वो मूर्ति में आप देखेंगे तो एक नाहटा करके सबसे फेमस मूर्ति वाला है, और वो जैनियों ने उसको समझ लो करोड़पति बनाते हैं, क्योंकि वो मूर्तियां जो बनाता है बहुत फिनिशिंग से बनाता है, मैक्सिमम मूर्ति समझ लो जैनियों की वही बनाता है। तो मैं भी गया था, वंस आई जस्ट गॉट अपॉर्चुनिटी टू गो देयर। तो मैंने देखा एक कमरे में बहुत सारी मूर्तियां पड़ी हुई हैं। पड़ी हुई है मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो कोई बिकने वाली नहीं। देन आई hesitatingly I just inquired from him that, Nataji, I just wanted to ask one question. Why so many murtis are here? And I think these are not for sale. हाँ सौरभ जी, ये बिकेंगी नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले हमारे यहाँ से कारीगर ने आपने जो नाप दिए थे, उन नाप में से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसलिए मूर्ति आपके यहाँ से रिजेक्ट कर दी। तो वो नाप कैसा होता है? समचतुर संस्थान होना चाहिए। समचतुर संस्थान, यू नो कि जैसे कि हम लोगों की लंबाई अलग है ना। कुंजन जी की लंबाई अलग है, मेरी अलग है, प्रीतेश जी की अलग है, आदर्श जी की अलग है, प्रेस जी की अलग, सबकी अलग अलग है। अच्छा, और हम सभी अपने अपने शरीर के साथ अच्छे लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि हमारे शरीर के अकॉर्डिंग हमारे हाथ है ना, हमारे शरीर के अकॉर्डिंग हमारे पैर की लंबाई है, हमारे शरीर के अकॉर्डिंग हमारा मुख है। लेकिन कुछ आप ऐसे भी एग्जाम्पल देखेंगे कि जिनका शरीर के अकॉर्डिंग ये अंग नहीं होते। जैसे किसी के पैर बहुत लंबे होते हैं, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता। जिसके पैर इतने लंबे होते हैं ना, तो वो उसे बोला जाता है कि आप नहीं लग रहे अच्छा, आपके पैर बहुत लंबे हैं। किसी का ऊपर का पोर्शन हैवी होता है, पहलवान जैसा, थोड़ा बलिष्ठ होता है, नीचे का पोर्शन कमजोर दिखता है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो जैसे पुरुषों में हम लोग देखते हैं कि हमारा शरीर या उस व्यक्ति को हम सुंदर मानते हैं जो एकदम शरीर की लंबाई के अकॉर्डिंग ही उसका चेहरा हो, उसके हाथ पैर की लंबाई हो, आंखें वैसी हों। किसी किसी के आपने कान बहुत बड़े होते हैं, वो सुंदर नहीं माना जाता। उसकी चूंकि कोई गलती नहीं है, लेकिन यहाँ हमारी बात चल रही है समचतुर संस्थान की। तो हमारी जो प्रतिमा होती है वो समचतुर संस्थान होती है, मतलब वो जितनी लंबाई आप प्रतिमा को देंगे उसके अकॉर्डिंग नाप है हमारे ग्रंथों में कि भाई इतने नाप पे के कान होना चाहिए, इतने नाप की आंख होना चाहिए, इतने सीना होना चाहिए, इतने पैर होना चाहिए, और फिर वैसे ही होते हैं। तो वो इसीलिए हमारी प्रतिमाएं देखने में बहुत आकर्षक और देखने में बहुत सुंदर लगती हैं, व्यवस्थित लगती हैं वो। और आप हमारी प्रतिमाओं को देखेंगे ध्यान से तो आप ये चीज आप नोटिस करेंगे कि कैसी हैं प्रतिमाएं हमारी। तो वो प्रतिमाएं हैं गंभीर सागर के समान महान मानस मंग है। उनके मुखमंडल पर, जो भगवान हमारे हैं उनके मुखमंडल पर कैसा दिखाई देता है? ऐसा लगता है इनके मुखमंडल पर सागर के समान गंभीरता है। सागर के समान गंभीरता मतलब
आप लोग जैसे ओशन में गए होंगे तो देखा होगा आपने कि वैसे तो उसमें जब लहरें आती हैं लेकिन जब वो शांत रहता है ना तो उसकी शांति को देख के डर लगता है। इतना शांत, इतना विशाल, मतलब उसकी गहराई जो है, उसकी समुद्र की गहराई उसके शांति से पता चलती है। जो जानकार लोग होते हैं वो नदियों को अ, उनके उन देख के पहचान जाते हैं कि कितना गहरा है ये। जैसे एक बार कोई बता रहा था कि एक बहुत अच्छा तैराक था, तो उसे किसी को बचाने के लिए बोला गया कि आप उनको बचाओ। तो बोलते नहीं नहीं साहब, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं क्योंकि ये नदी ना बहुत गहरी है। तो मैं कैसे पता, बोले। तो मैं भी था, आई वॉज देयर। तो उसने बोला कि साहब वो देख रहे हो कितनी शांत है ये। शांत है का मतलब बहुत गहरी है ये बाहर से आपको दिख रही है एकदम स्टिल, लेकिन अंदर में जैसे जाऊंगा ना तो अंदर बहुत तेज प्रवाह है। तो फिर वो उसने बताया तो मैंने भी नोटिस करना चालू किया कि जो उथली नदियां होती हैं, नाले होते हैं, झरने होते हैं, वो शोर मचा के चलते हैं, है ना। और जो एक्चुअल में गहरी नदी होती है ना, एकदम स्टिल, कूल, शांत बहती है। तो वो तो मैं नदी की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो आचार्य कह रहे हैं सागर की बात कर रहे हैं साहब। भगवान का मुखमंडल कैसा है? गंभीर सागर के समान है। भगवान का मुखमंडल कैसा है? गंभीर सागर के समान है। और उनके जो अंग हैं एकदम व्यवस्थित हैं। निर्विकारी उनका चेहरा है। मुखमंडल उनका कैसा है? निर्विकारी, कोई विकार नहीं उनके मुखमंडल पर। तो ये वर्णन जो चल रहा है ये अभी, अब हम तो मुख देख रहे हैं, तो शरीर का ही मुख देख रहे हैं ना, आत्मा का तो देख नहीं रहे हम तो अगर सुव्यवस्थित अंग कह रहे हैं हम, तो वो भगवान वो शरीर के कह रहे हैं। और उनके शरीर में अद्भुत अनुपम लावण्य है। लावण्य मतलब आकर्षण है। शोभ विरहित और अचल जयवंत जिनवर अंग है। शोभ विरहित मतलब किसी भी अंग से उनको हमें नहीं देख सकते कि हम कहीं भी उनके अंग का कोई खोट निकाल सकते हैं। तो उनके अंगों को देखकर हमारा क्षोभ हम चला जाता है। क्षोभ मतलब खेत चला जाता है। इसलिए usually what happened in life, that when we just go to temple and just to see God or Janendra Murti, so automatically if we are just having any kind of anger or pride, so that time automatically these things just disappears from our mind. वो उनका उनका गंभीर चेहरा जो है वो देखकर, उनकी मुख मुद्रा देखकर, उनके अंग की सुंदरता देखकर, उनके रूप लावण्य को देखकर हम सहज ही हमारा गुस्सा जो है शांत हो जाता है। जैसे पद्म पुराण आदि में हम देखें तो राम लक्ष्मण की सुंदरता, सौंदर्य का वर्णन आया। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि वो जो कृष्ण के भाई थे ना, क्या नाम था उनका, बलदेव। तो बलदेव और कृष्ण दोनों भाई थे। तो बलदेव जो थे ना, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि ऐसा वर्णन आता है हरिवंश पुराण में कि जब कृष्ण का देह विलय हो गया और फिर उनके बाद उनको वैराग्य आ गया तो वो मुनि बन गए। तो भाई हमारे मुनि जो होते हैं, हमारे मुनि तो कपड़े उतार देते हैं। तो वो नगर में आहार लेने आते थे। तो उनकी शारीरिक सुंदरता को देखकर स्त्रियां सुध बुध खो बैठती थी। मतलब ऐसा है कि साहब वो कुएं में पानी भरने जाएं तो बाल्टी की जगह अपने बच्चों को बांध के कुएं में डाल दें पैर से। महिलाएं रोटी अपना खाना बनाना छोड़ के उनको स्तब्ध देखते रहे। तो फिर उन्हें रिक्वेस्ट की मुनिराज से, नगर के पुरुषों ने, कि साहब आपका शरीर इतना सुंदर है साहब, कि साहब आपको देखकर हमारी स्त्रियां डिस्टर्ब हो जाती हैं, उनको विकार पैदा हो जाता है। उनको समझ में आया कि साहब इस शरीर की सुंदरता में तो मेरा कोई हाथ है नहीं और इसको तो कोई घात में पहुंचा नहीं सकता। तो फिर वो मांगी तुंगी पे जाके, आपने देखा होगा, मांगी तुंगी हमारा क्षेत्र है। वो क्या है, आप लोग सब लोग मांगी तुंगी आपके पास में प्रत्येक जी, आपके तो पास में है मांगी तुंगी। जी नहीं गया, मैं जाना था पर नहीं गया, थोड़ा दूर है हमारे यहाँ से भी। अच्छा, दूर है आपके यहाँ से? हाँ है, लेकिन महाराष्ट्र में है वो।
तो वो फिर समझ गए कि साहब ये तो साहब सही कह रहे हैं ये लोग तो वो फिर जाके ऊपर पीठ करके ऊपर तपस्या करने बैठ गए। अभी भी वो प्रतिमा ऐसी बना रखी है, वो पीठ करके बैठे हुए। तो मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे मन में भी किसी के सौंदर्य को देखकर विकार उत्पन्न होता है। भाई बलदेव के शरीर को देखकर विकार उत्पन्न हुआ। तो हम पढ़ रहे हैं ना मोक्षमा प्रकाशक में कि सब वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है साहब, इंद्रिय मनो शरीर और विचारों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इवन इसमें अपन मोक्षमा प्रकाशक के जब हम 8वां अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें 8वें अधिकार में एक वर्णन है, चरणानी योग दोष कल्पना निराकरण। तो उसमें ऐसा कहा कि कोई चरणानी योग को नहीं समझने वाला व्यक्ति ऐसा बोलता है कि क्रियाओं से क्या होता है, मन में भाव अच्छे हैं तो सब अच्छा है। तो पंडित जी वहां कहते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, नहीं भाई ऐसा नहीं है, बाहर की क्रिया पूर्वक ही परिणाम होते हैं। इसलिए चरणान योग बुद्धि पूर्वक वहां से हटने का उपदेश देता है कि भाई अगर आप विकारी लोगों के बीच में हैं, इफ दे आर नॉट गुड इन बिहेवियर इन थॉट्स, सो यू मस्ट इंस्टेंटली जस्ट रिनाउंस द कंपनी ऑफ द पीपल। आपको उसी समय उनका त्याग कर देना चाहिए। फिर भोजन की भी बात बताई उसमें चरणान योग में कि आप बाहर के पदार्थों से आपके अंदर के परिणामों का संबंध है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए आपको बुद्धिपूर्वक, तो चरणान योग का वहां महत्व बताया कि सब चरणान योग को अगर आप झूठा बोलते हैं तो वो फिर सारी क्रियाएं, मुनि आदि बनने की सारी क्रियाएं बेकार हो जाएंगी। तो अपन उसी चरणान योग को यहाँ रिलेट करते हैं। इस चरणान योग में कहा उसमें कि साहब बाहर के पदार्थों से हमारे अंतरंग के परिणामों का संबंध है। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि वो इतने सुंदर हैं जिनदेव की प्रतिमा कि उनको देखकर विकार रहित हो जाता है मन। उनकी चेहरे की गंभीरता को देखकर हम हमारा मन अच्छा हो जाता है। जैसे बलदेव को देखकर नगर की स्त्रियों के मन में विकार उत्पन्न होता था, इसी तरह से हे जिनदेव आपका चेहरा इतना गंभीर है, इतने व्यवस्थित सुंदर अंग हैं, रूप लावण्य है। अब देखो, वीतरागी भगवान को देखकर किसी को राग तो उत्पन्न नहीं होगा ना, तो वीतरागी भगवान के अंगों को देखकर भी वीतरागता ही उत्पन्न होगी। तो सौरभ जी, यहाँ पे एक प्रश्न है। हम्म। ऐसा कहा जाता है कि भगवान के अतिशय ऐसे होते हैं कि आप उनके अंग देख नहीं सकते, इतना तेज होता है कि आप उनको देख नहीं सकते। ये सही है क्या? भगवान के वो क्या बोलते समोषण की बात करते हैं। हाँ, समोशरण एक्चुअल भगवान की, प्रतिमा जी की नहीं। समोषण में ऐसा नहीं है, इतना जरूर आया कि एक परकोटे होते हैं समोषण में। तो एक स्पेसिफिक लिमिट के बाद इंद्र भी वहां नहीं जा सकता। मतलब एक सीमा है, जो लास्ट सीमा है वो इंद्र वहां तक जा सकता है, लेकिन उसके बाद वो वहां तक नहीं जा सकता, उनको टच नहीं कर सकता। लेकिन देख नहीं पाते ऐसा नहीं है, क्योंकि समोषण मंडन में तो ऐसा आया है कि सब लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान मेरी तरफ ही देख रहे हैं। इसलिए जो चतुर्मुखी प्रतिमा रहती है ना, अपन की 4 प्रतिमाएं बनाते हैं। जैसे आप राजगृह ही जाएंगे उधर बिहार में, तो वहां ऊपर पहाड़ पे जाएंगे तो 4 प्रतिमाएं हैं। तो 4 नहीं है एक्चुअली में, वो एक ही प्रतिमा है। वो मतलब एक ही भगवान है, एक ही भगवान को की प्रतिमा को 4 जगह बनाया गया है। तो समव शरण में वो हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि भगवान मेरी तरफ देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको देख ही नहीं पाते, क्योंकि हम तो सगुण भक्ति करते हैं, निर्गुण थोड़ी करते कि भगवान दिखे ही नहीं हाँ, और नहीं भक्ति नहीं, करें। उसमें ऐसा कहा जाता है, श्वेतांबर मतलब में ऐसा कहा जाता है कि उनके तेज इतना तीव्र, इतना जबरदस्त होता है कि उनके लिंग को या उनके प्राइवेट पार्ट्स को आप देख नहीं सकते हो, नहीं नहीं, दिखते ही वो नहीं है अपने वो। यहाँ नहीं। अपने यहाँ नहीं, अपने यहाँ तो ये है, देखिए हमारे मुनि और हमारे जैसे भगवान, तो हम स्पेशली भगवान की बात करें, तो भगवान की बात करें तो अगर मान लीजिए अपन ऐसा माने कि मुनिराज के लिंग को नहीं देख सकते वो भगवान के, तो भाई पुरुषपना किससे आता है? भाई स्त्री पुरुष की जो पहचान है वो काय से है? तो लिंग का मतलब होता है चिन्ह, है ना? भाई स्त्री पुरुष की क्या पहचान है कि स्पेसिफिक एक शरीर में आकार है, और उस आकार से ये निर्णय होता है कि ये पुरुष है, द्रव्य से पुरुष है, ठीक है। और उस द्रव्य से पुरुष व्यक्ति ही मुनि बन सकता है, और जो द्रव्य से पुरुष व्यक्ति है वही भगवान बन सकता है। अब अगर मान लो वो स्पेसिफिक अंग ना देखा जाए, ना दिखाया जाए,
हम उनके पुरुषत्व की हानि नहीं कर रहे। प्रतिमा जी में देखिए, इसलिए मतलब दोनों आमनाय का मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ। श्वेतांबर आमनाय में खड़गासन प्रतिमा नहीं बनाई जाती, और दिगंबर आमनाय में खड़गासन और पद्मासन दोनों प्रतिमाएं बनाई जाती है ना। तो जिनदेव के संपूर्ण अंग, मतलब उनके, तो आप यूं समझिए कि भाई जिनदेव का जो प्रतिमा खड़गासन प्रतिमा है, यद्यपि उसमें सामने जो उनका चिन्ह है वो सामने परिलक्षित होता है, तथापि वो चिन्ह उनके पुरुष पर्याय को, पुरुषत्व को ही तो बता रहा है ना भाई। इसका निर्णय कैसे करेंगे स्त्री है पुरुष है? तो वो ये पुरुष है, ये जिनदेव है, पुरुष लिंगी है, ये बता रहा है उनको। तो भले ही हम लोग सब ये चीजें ढक कर रखते हैं, लेकिन फिर भी अपन तो जानते हैं ना कि भाई जो क्या बोलते, न्यूटर जेंडर होते हैं, है ना, जो स्त्री है ना पुरुष है, जिनको यहाँ हिजड़ा बोलते हैं, तो वो तो समाज में असम्मान को प्राप्त है। वो बेचारे लोगों से मांगते हो क्यों घूमते हैं? क्योंकि कोई उनको काम नहीं देता। स्त्री पर्याय है, स्त्री पर्याय का सबको पता है कि भाई स्त्री पर्याय लज्जा की पर्याय है, इसलिए वो लोग अपने अंगों को ढक कर रखती हैं। पुरुष पर्याय है तो वो भी उसी से पहचान होती है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य कि दिगंबर आमनाय में ऐसा मुझे पढ़ने में कहीं नहीं आया कि उनका जो स्पेसिफिक अंग है वो ना दिखता हो। वो तो दिखना भी चाहिए। तो हमारी बात चल रही कि भगवान को देखकर विकार उत्पन्न नहीं होता है। भगवान को देखकर तो हमें आनंद आता है, क्योंकि वीतरागी भगवान को देखेंगे तो क्या उत्पन्न होगा? वीतरागता। जैसे आप लोगों ने वो स्टोरी पढ़ी है, इट्स अ वेरी फेमस स्टोरी, द लव स्टोरी ऑफ कृष्णा एंड मीराबाई। सब मीराबाई को किससे प्रेम हो गया? कृष्ण से प्रेम हो गया। 500 साल पहले की कहानी है ना। इट्स अ वेरी फेमस इन इंडिया। ये साहब मीराबाई ने अपने पति को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। बोले क्यों साहब? तब मुझे तो साहब कृष्ण से प्रेम हो गया। अब वो प्रेम भगवान और भक्त वाला था, और प्रेम वो प्रेमी प्रेमिका वाला था, तो वैसा ही कुछ वर्णन आया है। एक रहीम दास जी ने भी लिखा है इस पर, सूरदास जी ने भी लिखा है, बड़ी महिमा गाई है उनकी। हमारे यहाँ भगवान से किसी को प्रेम नहीं हो सकता, ये वाला। मतलब हमारे यहाँ कोई स्त्री नहीं बोल सकती साहब मुझे तो साहब नेमिनाथ से प्रेम हो गया। नहीं नहीं, क्योंकि वो वीतरागी है ना, उनके शरीर को देखकर वीतरागता ही पैदा होती है। वो उनका अंतरंग निर्विकारी था, इसलिए बहिरंग निर्विकारी हो गया। तो उनकी निर्विकारता को देखकर हमें भी निर्विकारता पैदा हो जाती है। तो यहाँ कहा कि वो कैसे हैं भगवान? समुद्र के समान गंभीर हैं, निर्विकारी हैं, उनके अंग, एक एक अंग उनके व्यवस्थित हैं, अनुपम अद्भुत लावण्यमय शरीर को धारण कर रखा है उनने, शोभ रहे थे, अर्थात उनके चेहरे पर वीतरागता है। ऐसे जिनदेव जयवंत बर। तो ये जो पूरा वर्णन बताया है, इसमें आचार्य अमृतचंद ने जिनदेव की का वर्णन बताया है कि इस तरह से उत्कृष्ट रूप से जो जिनदेव हैं वे जयवंत बरत हैं। अब आगे इसको समझा रहे हैं, और आचार्य अमृतचंद टीका में लिख रहे हैं कि इति शरीरे स्तूयमाने पि तीर्थंकर केवली पुरुषस्य तदिष्टते तेपि सुस्थित सर्वांगत्व लावण्यादि गुण भावत्वस्वेनम न स्यात्। इस प्रकार शरीर के अधिष्ठाता होने पर भी शरीर के स्तवन से तीर्थंकर का स्तवन नहीं हो जाता। दो बॉडी ऑफ तीर्थंकर इज सो ब्यूटीफुल दैट वी कैन नॉट इमेजिन, and when we see the roop lavan of that तीर्थंकर, we automatically attracted toward that। उसके बाद भी कह रहे हैं कि इतना सब करने के बाद भी वो वर्णन तीर्थंकर का नहीं हो जाता, इसलिए तीर्थंकर में उसका उनका अभाव है। हाँ, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ये? आदर्श जी, हमारा क्या प्रकरण चल रहा है बताइए आप लोग। हाँ, जय जिनेन्द्र। अभी का जो डिस्कशन मुझे समझ में आया वो यही है कि तीर्थंकर भगवान का जो जैसे प्रीतेश ने अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि उनको अपन देख नहीं सकते, उनकी तेज बहुत तीव्र होता है, लेकिन आपने वो क्लैरिफाई किया।
कि वैसे नहीं है। अम, तीर्थंकर भगवान को अपन सर्वगुण से भक्ति आराधना करते हैं, तो ओके, हाँ सौरभ जी आप बताइए। सौरभ जी, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हमने नगर का और कंपैरिजन किया फिर शंकर भगवान की स्तुति से। तो जैसे नगर में भी बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, या उसमें खाई है चारों तरफ, या बगीचे की सुंदरता है, उससे हम नगर की वी ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि कितना सुंदर नगर है वो। और शंकर भगवान का भी हम शरीर के बारे में बात कर रहे हैं कि इतनी सुंदरता है शरीर में, इतना आकर्षण है शरीर में। लेकिन इवन तो हम बात कर रहे हैं भगवान के शरीर की, लेकिन इससे भगवान के रियल गुणों का स्तवन नहीं हो रहा है। इससे भी हम शरीर का ही स्तवन कर रहे हैं अभी। ओके, गुड। तो निश्चय व्यवहार स्तुति पे हमारी चर्चा चल रही है। इस तरह से हमने आज ये चर्चा ली है, गाथा नंबर 30 पूरी हुई हमारी, 2 कलश पूरे हुए। अगली बार हम गाथा नंबर 31 की चर्चा हम लोग करेंगे। अभी हमारा समय हो गया है, जनवाणी सूत्र लेते हैं हम लोग। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार, वंदना शतवार। जय जगन्नाथ। सौरभ जी मैं आपको 2 मिनट से अभी कॉल लगाऊंगा, आई हैव टू डिस्कस समथिंग। जी सौरभ जी। जय जिनेन्द्र। हाँ कुंजन जी, सब लोग चले गए थे तो मैंने कहा खत्म कर दो फिर। जनवाणी तो ले लिया हमने। आप इंडिया में बाहर हैं, कहाँ हैं अभी? यूएस में, इंडिया में, कहाँ हैं? कुंजन चलिए म्यूट है कुंजन जी, शायद। हाँ म्यूट, कोई बात नहीं। हाँ सौरभ जी। चलिए मिलते हैं हम लोग। हाँ कुंजन जी। हाँ सौरभ जी अभी तक हम यहीं पे हैं। हम कल फ्लाई कर रहे हैं, ट्रेन ले रहे हैं इंदौर के लिए, तो अरे तो ये आपने वीक में बताया आ रहे हैं नहीं आ इंदौर। रहे, तो आपने बताया नहीं, इन्फॉर्म ही नहीं किया आपने। मैं सोच रहा था कब आ रहे हैं सौरभ जी हमारे मैं इंदौर आपको तो कॉल आप। ही करने वाला था, मैं आपको कॉल ही अरे करने वाला था। अच्छा अच्छा, तो आइए घर पे रुकिए, आप आइए, कहाँ रुकेंगे आप? नहीं सौरभ जी, हम 2 दिन तो वहाँ गोमतगिरी में है, फिर आपके उधर भी आगे आने का प्लान ही है, आपको कॉल करने वाले हैं। गवर्नमेंट की नहीं रुके हैं आप, वहां जाके रुक रहे हैं क्या? हाँ सौरभ जी वो साइड होंगे, और लेकिन हम आएंगे भी वो साइड भी। अभी तक वैसे पक्का प्लान नहीं बना है कहाँ होंगे, लेकिन अगेन अभी तक सिर्फ आने का प्लान है। नहीं तो किसने प्लान बनाया? आप मेरे से बोलते, मैं प्लान बनवा देता आपका सारा बढ़िया। सौरभ जी ऐसे कोई प्लान ही नहीं है अगेन। नहीं तो आप आइए ना, घर पे रुकते हैं अपन कुंजन जी। सर जी हम विकास जी को भी मिलने वाले 1-2 दिन तो वहीं पे, और फिर 1-2 दिन मतलब सिद्धवरकुट और वहां भी जाने का प्लान है, इसलिए अभी तक अगेन एकदम कौन से दिन कहाँ जाने वैसा प्लान नहीं किया, जस्ट इनफॉर्मली ऐसे ही सोचा है। चलिए बढ़िया, अच्छी बात है। तो मतलब एयरपोर्ट से मेरा घर पास में ही है, गवर्नमेंट गिरी पास में, मेरा घर भी पास में, तो एरिया नहीं है। राइट राइट राइट, नहीं मैं आपको कल कॉल करता हूँ, और पूरा मतलब अगेन अभी तक कुछ ऐसा फॉर्मल नहीं किया है। अभी कहाँ, बॉम्बे आप कहाँ हैं? अभी हम बॉम्बे में है, राइट। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं बढ़िया, आइए फिर आपको कोई मेरा सपोर्ट लगे तो अपन मिलते भी हैं, घर भी आइए आप, और मैं गवर्नमेंट गिरी आऊंगा, ऑफिस आइए आप, अपन बैठते हैं। ठीक है सौरभ जी। कितने बजे आ रहे हैं आप कल? कल हमारी शाम को ट्रेन है, हम ट्यूसडे को सुबह मॉर्निंग पे पहुंच रहे हैं। अच्छा शाम को ट्रेन है, ट्यूसडे सुबह पहुंच जाएंगे आप। राइट। बढ़िया। तो नहीं अभी मैं बोलूँ, गवर्नमेंट की रुकने की बात आपकी किससे हुई? आपकी बुकिंग कर ली आपने क्या रुकने की? हाँ सौरभ जी, वहां पे मैंने धाईद्वीप में ही जिनायतन में ही बोला है, 1-2 दिन वहां बोला है। फिर 1-2 दिन हम विकास जी के वहां जाने वाले, और फिर हम आते समय हम सोच रहे थे कि जब सिद्धवरकुट जाएंगे या वो साइड जाएंगे तो फिर थोड़ा मतलब वहां से फिर आएंगे ऐसा। अच्छा,
तो विकास जी के यहाँ रुकेंगे 2 दिन आप, यूं? हाँ राइट। मतलब विकास कहाँ, गांधीनगर रुकेंगे आप, यूं? गांधीनगर भी जाने वाले, राइट राइट, लेकिन अभी हाँ, तो विकास जी गांधीनगर ही तो रहते हैं। अच्छा, इतना सा प्लान बना लिया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं सोचा था कुंजन जी बताएंगे मुझे क्या प्लान बना रहे हैं, फिर मैंने कहा अभी घूम सर रहे जी होंगे ऐसे बाहर। एकदम प्लान जैसा कुछ नहीं है। और सेकंड थिंग ये है कि विकास जी अभी गांधीनगर मूव हो गए कि नहीं, मुझे तो अभी तक पता भी नहीं था। वो जो विकास जी का भी, तो हमें एक लैपटॉप उनको चाहिए था तो वो लेके आ रहे, तो तभी बीजल ने उनसे बात की थी। और हाँ, मैं भी भूल गया यार, तो मेरे को भी चाहिए था, पता है, मेरे को वो इसे टैब चाहिए। मेरे को टैब चाहिए था, मैं बोलना भूल गया आपसे। सर जी अभी कोई आता होगा ना दिसंबर में, तब कर लेंगे। आप हम मिलेंगे ना, तब बात कर लेंगे उससे। हाँ हाँ हाँ, टैब चाहिए दिसंबर था, में मैं कोई यहाँ देख कोई लिया। ना कोई होगा ही, right? अच्छा हाँ, ध्यान रखना, चलो ये मैं बोल दूंगा किसी को, तो टैब मेरे को मंगवाना Right, थोड़ा ये सा। भी लास्ट मोमेंट में ही हुआ विकास जी का भी, और अभी भी हमने भी विकास जी को तो ना ही बोला है, लेकिन वो मुझसे इंसिस्ट ही कर रहे हैं। क्या? तो बस सौरभ जी, लेकिन आपको मिलने तो आएंगे, इसलिए मैं मिलना ही रहने पड़ेगा, का नहीं तो मैं बुरा मान जाऊंगा। मैं, आप सोचो मैं यूएस आऊँ, आपके शहर में होकर चला जाऊँ, मिलूंगा तो कैसे लगेगा? मिलना तो है ही वो तो। हमारा, आपको पता है जैसे इंदौर आने का पूरा प्लान, मतलब वो सब भी है, सब देखना है बच्चों के लिए भी और सब कुछ, तो धीरे 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 वो स्टार्ट ही करना है। नहीं नहीं, अपन रहेंगे, साथ में रहेंगे, है ना कुंदन जी, कोई इशू नहीं है। और आपको कोई समस्या हो तो बता देना, तो मैं अपना ड्राइवर और गाड़ी मैं आपको दे दूंगा, तो दिन भर आप ठीक उसके है सर। साथ में, गाड़ी और ड्राइवर के साथ में जहां भी जाना चाहिए जा सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर जी कुछ होगा तो मैं आपको पक्का बोलता हूँ। मैं आपको कल थोड़ा हाँ, डिटेल में मतलब सोच के रखते हैं, तब तक हम लोग वैसे ऐसे ही हमने ऐसे ओपन रखा है कि बच्चों के साथ नेवर नो, राइट, कभी भी कुछ आगे पीछे हो जाए तो। नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, अपन को मिलना तो है ही, लेकिन आपको कोई, क्योंकि यहाँ आप घर पे तो आने ही हैं, आपको खाना रखना है मेरे को आपका, तो अपन डिसाइड कर लेंगे कौन से डे खाने पे आने हैं आपको। तो यहाँ उससे क्या होगा, बच्चों का मिलना हो जाएगा, बच्चों से बच्चों का मिलना हो जाएगा, यहाँ श्वेता से आप लोग मिल लेंगे, तो एक फैमिलिटी बढ़ेगी। या नहीं नहीं सौरभ जी, वो तो करेंगे पक्का। मतलब मेरी तो इच्छा थी आप घर पे ही आके रुकते, लेकिन आपने, मतलब मेरा घर है बड़ा, इतना छोटा नहीं है कि रुक सकते हैं। इस तरह के बच्चों के साथ थोड़ा पता नहीं है, यही यही एक थोड़ा है कि आगे पीछे क्या होता है, दैट्स व्हाई अभी हाँ हाँ, कुछ नहीं ऐसा कोई इशू नहीं, कोई issue नहीं। अपन यहाँ बैठेंगे, अब आओगे ना तो अपन अपन एक प्लान बना लेंगे, कल वाल अपन बात कर लेंगे। तो आप कहाँ कहाँ कैसे जा रहे हैं, वो ठीक है। वो अपन प्लान बना लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन घर पे आने का नहीं, घर पे अपन को खाने का रखना है एक दिन, है ना? तो अब वैसा प्लान शेड्यूल करना। ठीक है सौरभ जी। मतलब पहले से इनविटेशन है मेरा आपके लिए। हेलो। ठीक है सौरभ जी, मैं ठीक कल है, आपको ओके। कॉल। कल मिलते, तो आपका इंडिया का नंबर है कि यही नंबर पे बात होगी व्हाट्सएप पे? इंडिया का ये नंबर, मैं आपको इंडिया का नंबर देता हूँ सौरभ जी। आप इंडिया का दे दीजिए मुझे नंबर, है ना? ठीक है कुंदन जी। मैं आपको इंडिया का ओके, नंबर। मिलते हैं। हाँ हाँ, ठीक ठीक है सर जी। सर जी सब लोग है, लगता है ये चलिए। निकल जाए क्लास से, लेकिन मंगला अपना जिनवानी स्तुति लेते हैं। कर ली मैंने, कर ली, कर ली, ये जन्माष्टमी कर ली मैंने। वो कर आपने ली, कर कर ली, ली, ओके ठीक है सर जी, मेरा बीच में 2 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। तभी कर ली मैंने। ओके ठीक है सौरभ जी, तो जय चलिए, जिनेश आप सौरभ इंडिया का जी। नंबर भेजिए, फिर अपन कल डिटेल में बात करेंगे, है ना? मैं क्या अभी आपको बनाया आपने टेक्स्ट, शेड्यूल? ठीक है मैं सुनिए, अभी आपने आपको, क्या शेड्यूल बनाया है, एक अपन डिस्कस कर लेंगे, उसमें कुछ मॉडिफाई करना है तो बता दो, ठीक ठीक है सर जी। है? जय जिनेश सौरभ जी।